ठीक है we are going to start electrolysis now और electrolysis में कि it's kind of it's a the idea and the concept is the same that you studied in O levels AS के अंदर electrolysis नहीं होता था O levels में last time आपने electrolysis पढ़ा था it's basically the decomposition of an electrolyte or breakdown of an electrolyte by passing current. And what an electrolyte is any compound or substance or any solution. Uh, it could be aqueous, it could be molten, but an electrolyte must contain free moving ions. So if it's a solution, it must contain free moving ions. If it's in molten state, it must be an ionic compound that contains ions in it. So the ions should be able to freely move around. So it's the decomposition or breakdown of that substance by passing current. Electrolysis is the opposite of cell. It's the exact opposite of cell. अच्छा electrolysis के अंदर it's electrical energy that basically drives a chemical reaction. So it's electrical energy that gets converted to chemical energy. ठीक है, so you pass current. There's an external battery in electrolysis. Uh, you pass current and a chemical reaction happens. इससे पहले when we studied cells, ठीक है, if we go back, cells के अंदर उल्टा होता था कि cells के अंदर just अच्छा यहाँ पे cells ही नहीं है. Cells के अंदर होता था a chemical reaction would take place first. Higher potential would gain electrons, lower potential would lose electrons, and because of that chemical reaction, a current would flow. So उसके अंदर chemical energy gets converted into electrical energy, and there's a transfer of electrons because of a chemical reaction taking place. अब exact opposite होगा. Uh, so this is going to be the exact opposite. So I'm going to draw a rough diagram जो आप O levels में भी बनाते थे और सबसे simple electrolysis करते हैं, which is NaCl. ठीक है, we'll start with that. NaCl aqueous का करते हैं. And there's going to be one major difference. There's going to be one minor difference between O levels electrolysis and A levels electrolysis. And the major difference होगा कि O levels के अंदर ना you used to have this reactivity series जिसके through आप देखते थे कि जी उसके अंदर bottom के ऊपर जो भी होता था that the one at the bottom that is the one that was discharged. इसके अंदर ये होगा कि आप electrode potentials देखोगे और उससे figure out करोगे कि who's going to gain electrons and who's going to lose electrons. So I'm going to draw a rough diagram. उसके अंदर I'm going to put two electrodes. These electrodes are at the moment inert electrodes, ठीक है, which means okay, they're not going to take part in the reaction. अच्छा, so this is my these are my two electrodes. Inert electrodes, if you remember, they were made from either platinum or if you want a cheaper substance, then it was graphite. Graphite wasn't really inert. Graphite, बहुत सारी चीजों में it would react, but graphite is a cheaper replacement. So let's assume they're made out of platinum. ठीक है, so these are platinum electrodes, completely inert, and the solution contains an electrolyte, and that electrolyte is NaCl aqueous. ठीक है, in this case it's NaCl. It's NaCl aqueous. What happens in electrolysis? अच्छा, remember कि it's अब external battery लगी हुई है. इससे पहले there was no external battery. There wasn't a driving force that was sending electrons and removing electrons. ठीक है, now उसके अंदर reaction decide करता था. Now the thing is कि it's the battery that's going to decide who's going to gain electrons and lose electrons. अच्छा, so there's a cathode and there's an anode. Cathode क्या करता है? Negative side जो है that sends electrons. So it's sending all these electrons. All these electrons are coming in, and your cathode becomes full of electrons.
ठीक है, so there are lots and lots of electrons on the cathode. This is your negative side, cathode. अच्छा, remember cathode. I told you that by definition, cathode is not the negative side. Uh, it's the side where reduction happens. ठीक है, ये भी आगे देखेंगे कि how does reduction happen at cathode. Reduction happens why? Because anything that comes over here, it's going to gain electrons. The battery is going to, it's going to be sending electrons to it. So any substance that is present at cathode, battery would be providing it with electrons. So gain of electrons होगा, reduction होगा, ठीक है. So there's always going to be a gain of electrons happening. तो ये अपने दिमाग से ना थोड़ा सा निकाल लो कि cathode is not really the negative side. It could be मतलब सेल के अंदर उल्टा होता था. It was actually the positive side. Cathode is the side जहाँ पे reduction होती है, ठीक है. The other side, battery is removing electrons, ठीक है, from the other side. So if it removes electrons, the other side becomes electron deficient and it becomes positively charged. So there's lots and lots of positive charge on the anode. Okay, this over here is your anode, and anodes are positive. Electrolysis में anodes are positive. One second. So electrolysis में anodes are positive. Anode is the side where oxidation happens. Which means loss of electrons is going to happen over here. Why would electrons be lost? Because anything that comes over here, battery जो है उससे electrons, it's going to take away electrons. Okay, so it's going to remove electrons from on the anode side. अच्छा, ये तो सारा this is old electrolysis, ठीक है, O levels. उसके बाद क्या होता था? NaCl. NaCl has two ions. One is Na plus 1 and the other one is, so the solution is full of Na plus 1 and Cl minus 1 ions. और end result क्या होता है कि all the positive ions, ठीक है, all the cations, they get attracted to the negative one. So all these sodium ions, ठीक है, the sodium ion over here also, they all get attracted to the negative side, and all the negative ions, they get pulled or attracted to the positive side. So they are getting positive ions are getting attracted. तो ये भी लिख लेते हैं कि attracts positive ions cathode और anode attracts negative ions. कोई मुझे ये बता दे कि NaCl aqueous के अंदर और कौन से ions होंगे? Anyone? O levels में क्या पढ़ा था? Hydrogen ion और hydroxide. ठीक है. So it's basically, अब यहाँ पे थोड़ा सा difference आता है, ठीक है, O levels से. You had H plus 1 and OH ions in O levels. तो एक I'll make a point over here, and that is कि ये थोड़ा सा ना O levels में this was taught incorrectly actually. कि you were taught कि if there is water, so it contains two ions. One is H plus 1 and one is OH ions. ठीक है, so you were taught this कि aqueous होगा ना तो there's going to be H plus 1 and there's going to be OH minus 1 ions. Just one. जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना वो उधर मुझे मैसेज कर दे कि I'm अच्छा खैर, coming back to this. In O levels, you studied that water dissociates, ionizes, and produces H plus 1 and OH ions. मसला ये, reality ये, कि these two ions are almost non-existent. ठीक है, their concentration is very less. ये अगला topic हम actually इस पे पढ़ेंगे भी. The concentration of H plus 1 ions in pure water is it's actually 1 into 10 power minus 7 mole per dm cube. That's almost दूसरे की भी वही है. So there are almost no H plus 1 or OH ions. ठीक है, you can assume that there is no H plus 1 and OH ions. ठीक है, so almost non-existent.
So that's one important deviation from O levels electrolysis कि इसके अंदर H+1 और OH ions नहीं है, मतलब है लेकिन इतने थोड़े हैं कि बस उनको इग्नोर ही करो, ठीक है? They're not enough H+1 and OH ions to actually really matter in this reaction, ठीक है? अच्छा, so ये मेजर, ये सारे नोट करो, दिस इज द मेजर डिफरेंस इन O levels, कोई H+1 कोई OH ions नहीं है, ठीक है? What you have is instead it's basically water, ठीक है? मतलब what 99.999% जो चीज है ना, that's water, ठीक है? ये बस नॉन एग्जिस्टेंट है, H+1 and OH ions are non-existent. अच्छा, now water is a neutral compound. That means कि water would be at cathode and water would also be at anode. वो हर जगह होगा, ठीक है? So water is going to be present at both places. ठीक है, तो ये पॉइंट है कि बस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर नाउ देयर इज नो H+1 एंड OH आयंस अनलेस वो NaOH हो या फिर HCl हो, फिर तो ऑब्वियसली H+1 होगा या फिर OH होगा, ठीक है? इफ अगर कंपाउंड में ही OH आयंस हो, ठीक है? अदरवाइज वाटर आयनाइज नहीं होता, वाटर बहुत कम आयनाइज होता है, सो यू नॉट गोइंग टू राइट H+1 एंड OH आयंस, दोनों साइडों पे यू गोइंग टू राइट कि देयर इज वाटर प्रेजेंट। और अब अगले उस पर आ जाते हैं, व्हिच इज कि आपके पास ना कैथोड के ऊपर, लेट्स फोकस ऑन कैथोड। अच्छा, कैथोड के ऊपर फोकस करते हैं। कौन से दो आयंस आए हैं कैथोड के ऊपर? सो देयर टू कैंडिडेट्स। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? इट्स आइदर गोइंग टू बी Na+1, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी गेन्ड बाय सोडियम आयंस, ठीक है? दैट्स वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज द इलेक्ट्रॉन्स माइट बी गेन्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? सो बैटरी सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दोनों में से ऑप्शन है। तो हाउ डू यू डिसाइड कि which one gains electrons? तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या पढ़ा है? It's always the higher potential which has the higher tendency to gain electrons. So you're basically looking for equations, you're looking for substances that have higher E naught, ठीक है? They are more likely to gain electrons, ठीक है? They have a higher tendency to gain electrons. अच्छा, अब एक और जो डिफरेंस है वो ये कि रिमेम्बर कि जो अब ये उससे डिफरेंस है, जो पिछला हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है ना, वन थिंग दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इज कि कैथोड के ऊपर ना इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये यहाँ पे रिवर्सिबल का चक्कर नहीं चल रहा, ठीक है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैथोड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इफ आई ओपन द डेटा बुकलेट, अच्छा जस्ट वन सेकंड। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सो यू आर गोइंग टू लुक फॉर इक्वेशंस इन द डेटा बुकलेट, मतलब रिवर्सिबल नहीं ढूंढना, ठीक है? और जो इक्वेशंस डेटा बुकलेट में गिवन है उनको भी रिवर्सिबली कंसीडर ना करना, ठीक है? यू आर गोइंग टू लुक फॉर इक्वेशंस वेयर Na plus or H2O gain electrons, ठीक है? दैट्स द ओनली इक्वेशन यू गोइंग टू सर्च फॉर। और इलेक्ट्रॉन्स, वो जो डेटा बुकलेट में जिस तरह इक्वेशन लिखी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so we're going to look for the equations in the forward direction. Forward direction में equation देखोगे, that's gain of electrons. Just one second. Coming back, you have Na plus and H2O. Look at the data booklet. ठीक है, go to the equations. Remember, don't think of those equations as reversible equations. You're looking for equations where Na plus 1 is gaining electrons. तो आपने उसको फॉरवर्ड में देखना है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि Na किधर रह गया, एक सेकेंड। अच्छा, दिस वन, Na plus 1 should be on the left side, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर ना इट वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो आपने इक्वेशन को ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है। सॉरी, मैं शो ही नहीं कर रहा, नाउ आई एम शेयरिंग इट। अच्छा, Na+1 इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है? तो आपने जो भी आपके सब्सटेंसेस है ना, व्हिच आर गिवन इन द, जो वहां पे गिवन है, आपने उनको लेफ्ट साइड पे रखना है।
क्योंकि forward में ना they would be gaining electrons. So that is how you're going to write the equation. So if I copy this equation, Na plus 1 electron forward के अंदर देखना है, ठीक है? And it's Na और उसकी जो E naught है, that's कितना minus 2.71 volts है, ठीक है? तो when I've copied this, ठीक है, इधर ये bottom के ऊपर I've copied it right पे. So I'm looking at the equation in the forward direction, not in the backward direction. तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है ना तो हमेशा फॉरवर्ड में देखना है, ठीक है? एंड द सेम विद दिस अदर वन, द अदर कैंडिडेट इज वाटर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी इक्वेशन जाके डेटा बुकलेट में आप ढूंढो. तो इफ यू हैव अ लुक, तो उसमें ना आपने वाटर की देखनी है, वाटर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. So for example, if you can see this one on the screen, जिसको मैंने हाईलाइट किया, there is water plus 2 electrons, it's gaining electrons forward में. Water को आपने लेफ्ट पे रखना है, ठीक है? तो अच्छा, लेकिन यू वोंट यूज दिस इक्वेशन क्योंकि वाटर के साथ ना ये भी आ रहा है, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. ये एक और इक्वेशन है वे वाटर 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर. लेकिन फिर से आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस इक्वेशन क्योंकि देयर इज ऑक्सीजन एज वेल, वी डोंट हैव ऑक्सीजन. इसके साथ भी वही मसला है. अच्छा, ये वाटर राइट पे नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन दिस इक्वेशन वाटर इज ऑन द राइट साइड. That means के backward के अंदर water is losing electrons. So I'm looking for equations where water is gaining electrons. So far I found equations where water is gaining electrons, लेकिन उसके साथ there are other things as well. So I can't pick those equations. I'm just looking for equations where there's only water that is gaining electrons. ये एक मुझे मिली है, ठीक है? Look at this equation over here, जो टॉप से फोर्थ है, ठीक है? So there's 2H2O and that's gaining 2 electrons to form H2 and OH minus 1, ठीक है? So इसको मैं forward में देखूंगा, ठीक है? And the value is minus 0.83 volts. So let's go back and write this down. 2H2O plus 2 electrons and it's forming H2 plus 2OH minus 1 and the value is minus 0.83 volts. So I've gotten these two values in this case. ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई हैं. अच्छा, so I've gotten two equations. ठीक है, ये होपफुली क्लियर होगा सारों को कि जब आप कैथोड, I'm going to just recap के कैथोड होगा, gain of electrons होना है कैथोड के ऊपर. So you're going to look for equations where the substances, whichever substances that are cathode, they're gaining electrons, और उन equations को ना आपने forward के अंदर देखना है, ठीक है? डेटा बुकलेट में जाके ना जो आपका सब्सटेंस होना चाहिए वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, मतलब इसके अंदर डेटा बुकलेट के अंदर. और हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट वी हमने क्या सजेस्ट किया था, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, who's gaining electrons? It's always the higher E naught that ends up gaining electrons. तो इन दोनों में से I have two options. Which one has the higher potential to gain electrons? Higher E naught किसका है? वो इसका है, second वाली equation का. That's your higher E naught. So that is the one that I'm going to pick. और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. This is the reaction that's going to happen at cathode. Why? Because it's the higher E naught. It has a higher tendency to gain electrons. ये क्लियर है यहाँ तक सारों को? माहीन, मिनाइल क्लियर है? खदीजा, ताहा क्लियर है? जाइना? जी सर. सर आप थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं जरा, कि लेट आया था अच्छा, मैं बस जल्दी से वो एक क्विक रिकैप दे दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो एक साइड पे इलेक्ट्रोलिसिस में बैटरी आ गई है, ठीक है? बैटरी आशीष सही ध्यान दिया आपने. क्या चीज? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे. चलो हाशिर, ये जल्दी से मैं
जल्दी से मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर यू हैव अ बैटरी, बैटरी क्या करती है, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स भेज रही है, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन्स वापस ले रही है। जो भी यहाँ पे आएगा ना इस साइड पे, दैट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन्स देगी, ठीक है, इट्स गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो NaCl aqueous का हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस। तो इफ यू रिमेंबर कि दिस साइड इज द नेगेटिव साइड, कैथोड। तो दिस हैज टू आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Na+1 Cl-1। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे ना, दीज वंस दे गेट अट्रैक्टेड टू कैथोड, और जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टू एनोड। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था कि ओ लेवल्स में आप पढ़ते थे कि एक्वस के अंदर ना यू हैव वाटर, व्हिच मींस कि इट प्रोड्यूसेस दीस टू आयंस, H+1 and OH ions। अब मैं ये कह रहा हूँ कि the H+1 and OH ions are in very small quantity, मतलब उनकी जो concentration होती है ना, that's very very less। Water जो होता है ना, it doesn't really ionize much। तो because the ionization is so less, कि the H+1 and the OH ions are almost non-existent। तो आप assume ये करोगे कि there are almost no H+1 and OH ions, ठीक है, that's the main difference। ओ लेवल्स में हम लिखते थे कि जी Na+1 इधर आ गया, Cl-1 उधर आ गया। आप लिखते थे H+1 और OH-1। अब H+1 और OH-1 वाली बात नहीं करनी। वाटर इज नॉट गोइंग टू आयनाइज, नॉट टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो आप दोनों साइडों पे वाटर लिख दोगे, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर इज एवरीवेयर। तो कैथोड के ऊपर भी वाटर होगा, एनोड के ऊपर भी वाटर होगा। तो अभी हमने कैथोड का सॉल्व किया कि कैथोड के ऊपर these substances would gain electrons, right? So it's either Na+1 that gains electrons or it's water that gains electrons. तो you have दो कैंडिडेट्स हैं, Na+1 और वाटर। और उसमें मैंने कहा यू गोइंग टू लुक फॉर इक्वेशंस जहां पे Na+1 और H2O आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिवर्सिबल नहीं देखनी है अब इक्वेशन, फॉरवर्ड के अंदर देखनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ यू वही अगर इफ आई ओपन द डेटा बुकलेट, तो आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड। कि लेफ्ट साइड के ऊपर ना फॉरवर्ड के अंदर इट वुड बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें +2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। तो यू गोइंग टू लुक फॉर इक्वेशंस वेयर the substances that you have, they are gaining electrons, ठीक है, whether it's Na+1 or H2O। So I found out these two equations। और remember इसमें मैंने reversible का sign भी नहीं डाला, क्योंकि the only thing that's possible is gain of electrons at cathode। cathode के ऊपर सिर्फ gain of electrons होगा। So don't even put a reversible sign over there। और फिर आप gain करता कौन है? Higher potential, ठीक है। Higher potential is the one that's going to gain electrons। तो उसको हमने मार्क कर दिया कि जी Na+1 की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम है। वाटर इज द वन, इट हैज अ हायर पोटेंशियल, इट एंड्स अप गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कहीं और क्लियर हो जाएगा। दूसरी साइड डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन द अदर साइड, एनोड वाली साइड पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द एनोड, सबसे पहले तो उस पे सब्सटेंसेस कौन से आ रहे हैं। एनोड के ऊपर the substance would lose electrons, the battery is going to take away electrons, ठीक है, it's going to pull electrons। तो if it removes electrons, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? लोअर ई नॉट। सो you're looking for substances that have the lower E naught, lower potential, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होगी। तो you have two candidates, one is Cl-1, the other one is again water। तो आपने देखते हैं इन दोनों में से who's going to lose electrons? वाटर वहां पे भी था, वाटर यहाँ पे भी है। तो it's either Cl-1 or H2O। Now what you're going to do is you're going to look for equations। So now you're going to look for equations. One second. I said, so now you're going to look for equations where Cl-1, H2O lose electrons। और वो equations जो होनी चाहिए, they should be data booklet में जिस format में equation है ना, backward के अंदर electrons are lost। So backward direction के अंदर you're going to look for equations in the backward direction। So you have two candidates, Cl-1 and H2O। So if I open the data booklet, अब ये करना है कि Cl-1 को राइट साइड पे ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये टॉप के ऊपर ना, देयर इज एन इक्वेशन एंड देयर Cl-1। तो इसको बैकवर्ड में अब देखना है।
ठीक है, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ रिवर्सिबल, इसको लूज करते हुए देखो इलेक्ट्रॉन्स, बैकवर्ड के अंदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोड्यूसेस Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, this or 1.36 volts है, तो इसको what I'm going to do is I'm going to write this equation in the backward direction. It's going to be 2Cl minus 1 and 1 second. So it's going to be 2Cl minus 1 loses यहाँ पे अच्छा 2Cl minus 1 loses electrons to form Cl2 plus 2 electrons. So 1.36 volts. ये वैल्यू, ये मैंने इसी इक्वेशन को पकड़ा है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड वन, वाटर को ढूंढो, वाटर को राइट साइड पे ढूंढना है, वेयर वाटर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इफ यू गो बैक एंड हैव अ लुक, वापस डेटा बुकलेट पे जाते हैं, तो इफ यू हैव अ लुक, यहाँ पे राइट साइड पे ना वाटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बैकवर्ड के अंदर ना इलेक्ट्रॉन लूज करे. So far, I mean, there is water, like in there's water with other substances. We don't have those substances, so I'm just looking for water, ठीक है, water alone. So there's one equation, अच्छा there are two equations, दोनों साथ साथ हैं, ठीक है. There's one over here, जिसको मैंने highlight किया हुआ है, इसको मैं copy कर लेता हूँ backward के अंदर, ठीक है. So it's basically 2H2O, arrow, और क्या बना रहा है, it's forming H2O2 plus 2H plus 1 plus क्या है, plus 2 electrons, नहीं, H2O2 plus 2H plus 2 electrons, yes. And it's 1.77 volts. सर लेकिन इसमें H2O2 है तो उसकी वजह से हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे. नहीं, H2O के साथ तो नहीं है ना, वो तो 2H2O अकेला है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो मर्जी बनाए, मतलब इधर कुछ भी हो सकता है, समझ आई बात. H2O के साथ कुछ नहीं होना चाहिए था. H2O इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्रोडक्ट जो मर्जी बने, ठीक है, वी नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्ट. मतलब एज एन एग्जांपल वो था ना कि पीछे था ना कि ये जिस तरह इक्वेशन थी, मतलब ये वाली मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स NH4+1 के साथ मिलके फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. तो NH4+1 तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है. तो होपफुली ये क्लियर होगा, ठीक है कि ठीक है सर. ठीक है. अच्छा खैर, इट्स Sir? 1 पॉइंट. यस सर आपने कहा था एक एग्जांपल आप दे थे जिसमें ई नॉट की जो साइंस होते हैं वो काउंट नहीं होते, तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे. नहीं, वो मैंने पहले ही कहा है, ई नॉट का साइन जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मेक सेंस. मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, हायर पोटेंशियल होता है और लोअर पोटेंशियल होता है, दैट्स इट. समझ आइए बात. सर तो फिर ऊपर हमें 2.71 नहीं लेना चाहिए था क्या नहीं, वो जो माइनस Na की थी. नहीं कि वो ये इसकी जो वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू तो -2.71 है. तो माइनस को हम इसमें कंसिडर करेंगे. नहीं, मैं कह रहा हूँ माइनस और प्लस आप देखो, वो माइनस प्लस वाली जो बात है ना, वो मैं कह रहा था कि माइनस प्लस जो है वो तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले किसके, उसके कंपैरिजन में थे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाले थे ना. तो माइनस प्लस इंडिकेट करता है कि जी वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव है या उसके मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है. तो मैं बस ये कह रहा हूँ, ये माइनस, मतलब माइनस और प्लस आप कंसिडर तो करोगे, मतलब ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो -2.71 है, ठीक है. मतलब इस नीचे वाले की वैल्यू -0.25 है, तो वो माइनस कहीं नहीं जाने वाला, वो माइनस वही होगा. मैं बस ये कह रहा हूँ, जब आप डिसीजन ले रहे होते हो ना, कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और कौन लूज करेगा, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसमें आपने हायर पोटेंशियल देखना है और लोअर पोटेंशियल देखना है, ठीक है. मतलब बात समझ आई, मतलब ये नहीं है कि माइनस प्लस को आपने, जी सर. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने माइनस प्लस को इग्नोर कर देना, ठीक है. बस मैं कह रहा हूँ माइनस प्लस के ऊपर आपने डिसीजन नहीं लेना, आपने डिसीजन लेना है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है. अच्छा खैर, वो किधर गई हमारी इक्वेशन, ये वाटर की, वाटर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर एनोड के ऊपर बैकवर्ड में उल्टा देखना है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो राइट साइड पे होना चाहिए. अच्छा ये वाला दूसरा है, एक और इक्वेशन भी है. तो लेट्स राइट दिस अदर इक्वेशन. एक सेकंड में कॉपी कर लूं. 2H2O2 प्लस 4H प्लस 1 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना 1.23 वोल्ट्स है, ठीक है. ये मैंने कॉपी कर ली, वापस उस पर आ जाते हैं. अच्छा तो I've copied the three equations.
पहला, और वो मैंने सीधी करके लिखी है, वहां पे बैकवर्ड में थी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मैंने इधर सीधी करके लिख दी है. सो आई हैव थ्री इक्वेशंस, थ्री कैंडिडेट्स. इट्स आइदर Cl-1 दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, वाटर दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और वाटर अगेन दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? लोअर ई नॉट. और लोएस्ट ई नॉट कौन सी इन दोनों में से, इन तीनों में से? इट्स गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है, दैट्स योर लोएस्ट ई नॉट. तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है. You figure out the equation at cathode, you figure out the equation at एनोड. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर कैंडिडेट्स जो होंगे कैथोड पे, दे गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो इक्वेशन को देखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. फॉरवर्ड के अंदर वहां पे डेटा बुकलेट में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड. तो आपने अपने जो जो भी ये सब्सटेंसेस हैं उनको डेटा बुकलेट में जब ढूंढोगे ना, लेफ्ट साइड पे ढूंढोगे, ठीक है. नोट भी कर लोगे, सॉरी, जब आप फॉरवर्ड में देखोगे तो ये जो कैंडिडेट्स होने चाहिए लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, ताकि फॉरवर्ड के अंदर दे गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरी साइड पे व्हेन दे लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन दोनों में से कोई लूज करेगा, तो आपने इक्वेशन को, डेटा बुकलेट की इक्वेशन को बैकवर्ड में देखना है एंड फाइंड दोस इक्वेशंस वेयर दीस सब्सटेंसेस आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. और लूज कौन करता है? लोअर पोटेंशियल. गेन कौन करता है? हायर पोटेंशियल, ठीक है. तो आपने दोनों इक्वेशंस जो है वो फिगर आउट कर लिए और आपका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो हर, अब बाकी जितने भी एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे उसमें यही करना है. बस ये नोट कर लेना, कोई H+1 नहीं होगा, कोई OH-1 नहीं होगा, दोनों साइडों पे वाटर होगा, ठीक है. दैट्स अनदर डिफरेंस. तो ये क्लियर है. इसके और एग्जांपल्स अभी करेंगे और क्लासेस में, बट इज दिस क्लियर? ताहा क्लियर है? ज़ैनब, ज़ेबिंदा क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया. सर चलो, यस. सर अगर ये हम साइन को कंसीडर नहीं करें तो फिर वो 2.71 वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी नहीं है? नहीं नहीं, मैं फिर से वो कह रहा हूँ कि देखो, मैं वो मैं बात समझा रहा था कि साइन माइनस और प्लस तो उसका साइन है, वो तो सारी जिंदगी उसका रहेगा, ठीक है. वो -2.7. मैं बस वो कह रहा था, वो जो डिसीजन आप लेते हो ना कि कौन गेन करेगा, मैं कह रहा था कि वो उसके ऊपर नहीं लेते कि माइनस है या प्लस है. आप उस पर लेते हो कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. मतलब लोग ये कंफ्यूज होते थे ना कि ये तो दोनों वैल्यू माइनस है, ठीक है. तो वो लोग माइनस और प्लस पे कंफ्यूज होते हैं. आपने बस देखना है वो, मतलब माइनस और प्लस उसकी वैल्यू का पार्ट है, ठीक है, वो तो वही रहेगा. राफे समझ आ रही है बात? मतलब सर जो जिस तरह माइनस में जो ज्यादा छोटी वैल्यू होती है वो लार्जर होती है, तो मतलब उस हिसाब से हमने करना है. हाँ, मतलब आपने 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 देखना है हायर कौन सा है और लोअर कौन सा है, ठीक है. मतलब मैं बस ये समझा रहा था कि माइनस और प्लस मैटर नहीं करता डिसीजन मेकिंग में ना, कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, वहां पे जो वैल्यू है, लोग इसमें साइन में पड़े हुए थे ना कि वहां पे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है. तो मैंने कहा था कि वो नेगेटिव पॉजिटिव इट्स नॉट एन इशू, ठीक है. द इशू इज कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है. राफे क्लियर है? सर यस. सर ये जो हमने हायर और लोअर पोटेंशियल वाली मतलब इक्वेशंस ली हैं, इसका जब हम लोग ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो काफी छोटा नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा? नहीं, ई नॉट सेल तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये ये दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं. बैटरी बैटरी बेसिकली ड्राइव कर रही है ना. अच्छा, मतलब बैटरी जो है ना वो जबरदस्ती, अब यहाँ पे जो भी आएगा ना, बैटरी ने जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देने ही देने, ठीक है. और यहाँ पे बैटरी ने जो भी आएगा, यहाँ पे अगर बैटरी की वोल्टेज इतनी ज्यादा है तो वो उसने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने ही करने, ठीक है. तो बल्कि इसके ऊपर ना खैर अभी टाइम खत्म हो गया. इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा पॉइंट भी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. ये होपफुली क्लियर है, और एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलिए ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.